यस फ्रेंड्स, तो हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, इनको करेंगे। बी लिमिटेड इज अ कंपनी दैट हैज इन स्टॉक मटेरियल ऑफ टाइप XY that cost rupees 75,000 but that are now obsolete and have a scrap value of only 21,000। इनके पास मटेरियल XY है 75,000 रुपए का और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 21,000। Other than selling the material as scrap, there are only two alternative use for them। अब ये बात हो रही है मटेरियल की। एक तो हम उसको एज इट इज बेच दें, दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिव 1, कन्वर्टिंग द ऑब्सोलीट मटेरियल इनटू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट विच वुड रिक्वायर द फॉलोइंग एडिशनल वर्क एंड मटेरियल। मटेरियल ए और बी लगेगा 600 यूनिट, 1000 यूनिट। डायरेक्ट लेबर लगेगी 5000 घंटे स्किल्ड के, 5000 सेमी स्किल्ड के, 5000 हाईली स्किल्ड के। एक्स्ट्रा सेलिंग, एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट ये लगेगा। द कन्वर्जन वुड प्रोड्यूस 900 यूनिट ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट दैट कुड बी सोल्ड फॉर ₹300 पर यूनिट। ओके, अब इसके बारे में दिया है इन्होंने, इसको पढ़ते हैं। मटेरियल ए इज इन स्टॉक एंड इज वाइडली यूज्ड विद इन द फर्म। वाइडली यूज्ड है, अंडरलाइन कर ले। इसका मतलब क्या है? मटेरियल ए रेगुलर नेचर का है। Although present stock together with orders already planned will be sufficient to facilitate normal activity, and extra material used by adopting this alternatives will necessitate such material being replaced immediately। अब ये जो कहानी लिखी होती है इसका मतलब ये है कि भाई रेगुलर नेचर का है, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मटेरियल बी इज ऑल्सो इन स्टॉक बट इट इज अनलाइकली, यहां से आ गई, that any additional supply can be obtained for some considerable time because of an industry dispute। At present, material B is used in production of jet। अब सुनिए, ये मटेरियल वो नहीं है जो रेगुलर नहीं, ये मटेरियल हमारा शॉर्ट सप्लाई में है। और जब शॉर्ट सप्लाई में है तो देखिए क्या पड़ा है। At present, material B is normally used in production of jet which sells at ₹390 per unit and incur variable expenditure of ₹210। Each unit of JAD require 4 unit of material B। The detail of material B are as under। ठीक है जी, ओके। Alternative 2, adopting the obsolete material for use as a substitute for a sub-assembly that is regularly used within the firm। अब इन्होंने बोला इस ऑब्सोलीट मटेरियल की हम एक दूसरा काम करें, सब असेंबलीज बना लें और वो कंपनी में यूज होती रहती है। डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा वर्क जो है वो ये दिया। मटेरियल सी 1000 यूनिट की लगेगी, लेबर इतना। ओके, आगे पढ़े। 1200 units of sub-assembly are regularly used per quarter at a cost of ₹900 per unit। The adoption of material XY would reduce the quantity of the sub-assembly purchased from the outside at the firm to 900 units for the next quarter only। अभी हम लोग 1200 यूनिट पर क्वार्टर खरीदते हैं, अगर हम खुद बनाएंगे तो 900 यूनिट खरीदनी पड़ेंगी, यानी कि 300 का फायदा हो जाएगा। However, since the volume purchased would be reduced, some discount would be lost and the price of those material would increase to ₹1050 for the quarter। Okay, चलिए। Material C is not available externally, though 1000 units required would be available from stock। It would be produced as extra production। The standard cost of material C would be as under। Okay, the wages and overhead recovery rate for B Limited are as under। Okay, the unskilled labor is employed on a casual basis and sufficient labor can be acquired to exactly meet the production requirement। Semi-skilled labor is part of the permanent labor force, but the company has temporary excess supply of this type of labor
at present time. Highly skilled labor is in short supply and cannot be increased significantly in the short term. This labor is presently engaged in meeting the demand for product L, which requires 4 hours of highly skilled labor. The contribution from sale of 1 unit of product L is 24. Given the information, you are required to present cost information advising whether the stock of material should be sold, converted in specialized or adopted as a सब असेंबली। तो देखिए पढ़ने में इतना टाइम लग जाता है, क्वेश्चन को 10 मिनट लग गए, तो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या है, हमें क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिए, हर ऑप्शन की एक रेवेन्यू दी है और एक कॉस्ट दी हुई है, तो हमें हर ऑप्शन के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, पहले क्वेश्चन में यही समझे कि हमारा बनेगा क्या। तो हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्योंकि हम कई ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, पहले तो इसको वेरी गुड लिख दीजिए। अब हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, कैसे बनाएंगे, एक तो तरीका है हम लोग ऐसे बना लें और हर आइटम की अलग अलग डिटेल्स डालें, और दूसरा तरीका है कि पर्टिकुलर डाल के तीनों ऑप्शन करें। तो मैं इसको इस तरीके से बनाता हूं, ये थोड़ा कंफर्टेबल ऑप्शन है। ऑप्शन 1 सेल एज स्क्रैप, ऑप्शन 2 convert into specialized item, और ऑप्शन 3 use as substitute। ओके, 3 ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन की हम बात करें रेवेन्यू, रेवेन्यू है हमारी 21,000 लेस कॉस्ट, इसमें हमारा कॉस्ट नील है, तो नेट बेनिफिट कितना है, नेट बेनिफिट है हमारा 21,000 रुपये। ठीक है, पहले ऑप्शन में। अब हम ऑप्शन 2 की बात करें, यानी कि ऑप्शन 2 का मतलब है अल्टरनेट 1। अल्टरनेट 1 में देखें, हम ऑब्सोलीट को स्पेशलाइज आइटम में बेचेंगे। नीचे लिखा है 900 यूनिट बनेंगी, 300 रुपए में बेच सकते हैं, यानी कि इसमें जो रेवेन्यू आएगी 900 इंटू 300 ये होगी 2,70,000। ठीक है, नौ सौ इंटू 300 2,70,000 लेस करेंगे हम रिलेवेंट कॉस्ट। अब रेलेवेंट कॉस्ट निकालेंगे, अलग अलग आइटम है तो इनके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जैसे मटेरियल के लिए हम वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, ऑप्शन 2 का मटेरियल की वर्किंग नोट है ये।
पढ़े जरा मटेरियल के बारे में, बुक खोल लीजिए आप। हमें चाहिए मटेरियल ए 600 यूनिट। मटेरियल ए जो है वो हमारा रेगुलर यूज का है, तो रेलेवेंट कॉस्ट होगी हमारी करंट परचेज प्राइस, और करंट परचेज प्राइस का मतलब है कितनी यूनिट चाहिए हमें, 600 यूनिट चाहिए। एक्विजिशन कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू 85 है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90 रुपए। अच्छा, तो 600 यूनिट होंगी 90 रुपए से 54,000 रुपीज। ठीक है, मटेरियल बी। मटेरियल बी क्या है हमारा, मटेरियल बी इन्होंने बोला था ये हमारा शॉर्ट सप्लाई है। शॉर्ट सप्लाई है यानी कि मिल नहीं रहा है। ओके, जरा समझिएगा, मिल नहीं रहा है। ठीक है, और वो कैसे आएगा, पढ़िए जरा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा समझ में। मटेरियल बी के बारे में दिया है, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें ये एडजस्टमेंट ऐसे दिया है। इन्होंने बोला है ये एट प्रेजेंट इससे जेड बनाया जा रहा है, और जेड में हम कितनी यूनिट लगाते हैं, 4 यूनिट की लगा सकते हैं। सो एंड will be used by reducing production of Z. So benefit lost पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेल ऑफ जेड कितनी है 390, कॉस्ट इसको कितनी पड़ रही है 210, कंट्रीब्यूशन 180, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी 4 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी ये आया हमारा 45 रुपए, यानी कि एक यूनिट पर हमको 45 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और है तो नहीं, तो खरीदने की तो बात ही खत्म हो गई। तो मार्केट एक तरह से हमने जेड में से यूज करेंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी हमारी, जो हमारा बेनिफिट लॉस्ट है, दैट इज 1000 इंटू 45,000, 99,000 का मेरा मटेरियल लग रहा है। समझे आप? अब आगे पढ़े। 99,000 का मेरा मटेरियल लग गया है। अब मुझे लेबर के बारे में बात करनी है। लेबर कैसी है, वर्किंग नोट 3,
लेबर, ये अभी 2 है वर्किंग नोट फॉर ऑप्शन 2। चलिए, 3 तरीके की लेबर बोली है इन्होंने। पहली अनस्किल्ड, दूसरी सेमी स्किल्ड, और तीसरी है हमारी हाईली स्किल्ड। अब देखें लेबर के बारे में क्या लिख रहे हैं। लेबर के बारे में इन्होंने सबसे नीचे लिखा है, द अनस्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन कैजुअल बेसिस एंड सफिशिएंट लेबर कैन बी एक्वायर्ड। ये नीचे लिखा है, देखिए यहां पर, एग्जैक्टली मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। तो अनस्किल्ड लेबर हमारी अगर कैजुअल है, ये आएगी हमारी कैजुअल प्लस फ्री। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी है? 5,000 इंटू 3 रुपए पर आवर का 15,000 रुपए। ठीक है। अब हम सेमी बात करें। सेमी स्किल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ परमानेंट लेबर फोर्स। तो जब परमानेंट लेबर होगी तो क्या होगी आपकी? ये आपकी परमानेंट है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? नील। क्यों? परमानेंट लेबर आपकी संक कॉस्ट होती है। अब हम हाईली स्किल्ड लेबर की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान दीजिए। हाईली स्किल्ड लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड कैन नॉट बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। द लेबर इज presently engaged in meeting the demand of product L, which requires 4 hours, okay, of highly skilled labor. The contribution from the sale of one unit is 24। तो हाईली स्किल्ड अब कैसी हो गई? कैजुअल भी हो गई और बिजी भी हो गई। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? लेबर कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट। कितने घंटे चाहिए? लेबर कॉस्ट है 5,000 इंटू लेबर कॉस्ट है 5 रुपए पर आवर, और बेनिफिट लॉस के लिए हम लोग वर्किंग कर ले। बेनिफिट लॉस्ट पर आवर, कंट्रीब्यूशन है हमारा 24 रुपए पर यूनिट, लेबर आवर है 4, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर आ गया 6 रुपए। तो इसमें 6 रुपए ऐड कर दीजिए, तो ये आएगा हमारा 55,000। इसका टोटल हो गया 70,000 रुपए। तो पहले पन्ने जहां हमने कंपैरेटिव बनाया था, वहां लेबर लिखे हम वर्किंग नोट 2 से 70,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अल्टरनेटिव 2 में पढ़े, अल्टरनेटिव 1 में पढ़े, और क्या क्या लगना था? एक्स्ट्रा सेलिंग डिलीवरी लेने थे, एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट लगनी थी। ठीक है, वो तो हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो डायरेक्ट पूरे रेलेवेंट होंगे। लेबर के बाद कुछ है? हाँ, वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं? ओके, वेरिएबल ओवरहेड है 1 रुपए पर आवर,
फिक्स्ड ओवरहेड है आपके 3 रुपए पर आवर। ओके, चलिए वर्किंग नोट 3 बना दीजिए। ओवरहेड फॉर ऑप्शन 2। वेरिएबल ओवरहेड में रेलेवेंट कॉस्ट होती है हमारी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, दैट इज 15,000 आवर्स तीनों लेबरों का मिला लें। और फिक्स्ड ओवरहेड में रेलेवेंट कॉस्ट होती है निल। तो ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सीन दिस। ये हमारी ये दूसरे पन्ने पे लिखना था, मैंने इसको पहले ही पन्ने पे लिख दिया। फिर से लिखता हूं मैं, वर्किंग नोट 3, ओवरहेड फॉर ऑप्शन 2, वेरिएबल ओवरहेड, रेलेवेंट कॉस्ट था हमारा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, तो यानी कि जो घंटे आपके थे 15,000 घंटे इंटू 1, 15,000। और फिक्स्ड ओवरहेड जो है रेलेवेंट कॉस्ट होगी उसकी निल। तो ये टोटल आपका आ गया 15,000। यहाँ ओवरहेड का लिखें आप वर्किंग नोट 3 से 15,000 रुपए। अब एक्स्ट्रा सेलिंग के जो खर्चे जब वो एक्स्ट्रा है तो वो पूरे ही लिखेंगे, और एक्स्ट्रा डिलीवरी के जो खर्चे हैं या एडवर्टीजमेंट के जो खर्चे हैं वो 18,000 है। इन सबको ऐड लेस करें तो इसका जो नेट बेनिफिट आएगा वो आएगा, देखिए 99,000, 45, 60, 160, 160, 45 और 15, 60, 130, तो ये आएगा 41,000। ठीक है, अब हम ऑप्शन 3 कर रहे हैं। ऑप्शन 3 को मैं थोड़े डिफरेंट कलर में करता हूं सो दैट पता रहे। ऑप्शन 3 का मतलब है हम सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे नहीं, प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं क्वेश्चन, परेशान नहीं हो आप लोग, डर रहे हो नहीं तो। चलिए, ऑप्शन 2 में यहां रेवेन्यू ही बड़ी अच्छी डिफरेंट तरीके से निकलेगी। ऑप्शन 2 इतना इजी नहीं है, ऑप्शन 2 बड़ा अलग तरीके से है। तो देखिए क्या है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 कह रहे हैं कि अगर हम इस मटेरियल को खुद बनाएं, अगर इस मटेरियल को हम सब असेंबली में यूज करेंगे तो हमारी सब असेंबली परचेज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सेविंग इन परचेज कॉस्ट। ये वर्किंग नोट हमारा आएगा 4। सेविंग इन
परचेज कॉस्ट ऑफ सब असेंबली। देखिए परचेज कितनी हो रही है, 1200 यूनिट खरीद रहे हैं हम लोग 900 रुपए से, 10,80,000 की। आफ्टर परचेज आफ्टर XY used in सब असेंबलीज, तब हमें 300 यूनिट कम खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन जो भी होंगी वो अब हमारी 1050 की होंगी। तो जो हमारी नेट सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,35,000 की। इसको हम यहां लिखेंगे। एक लाख 35,000 की तो मेरी सेविंग हो गई परचेज में। अब उन्होंने क्या बताया था कि इसमें मुझे मटेरियल सी लगाना पड़ेगा। देखिए एडॉप्टिंग डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा वर्क एंड मटेरियल, इसमें हमें मटेरियल सी लगाना है 1000 यूनिट का। अब 1000 यूनिट के लिए देखिए मटेरियल सी इज नॉट अवेलेबल एक्सटर्नली, और ये स्टॉक में तो होगा लेकिन इट वुड बी प्रोड्यूस्ड एज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, इसको बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, मटेरियल को बनाने की जो कॉस्ट होगी वो होगी मेरी, ये डिटेल दे रखी है। तो मैं क्या बताऊंगा, वर्किंग नोट 5 रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल सी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल सी। देखिए क्या क्या लगना है मटेरियल सी में, डायरेक्ट लेबर लगेगी 6 घंटे 18 रुपए के, रॉ मटेरियल लगेगा 13 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 6 रुपए के, और फिक्स्ड ओवरहेड हम क्या करेंगे, नील, क्योंकि संक मानते हैं हम इनको। तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी हुई, 37। तो यहां पर 1000 यूनिट लगनी थी हमारी 37 से, तो जो सी की कॉस्ट हम लेंगे वो कितनी लेंगे, 37,000 रुपीज। लेस करेंगे रिलेवेंट कॉस्ट मटेरियल की 37,000, ये वर्किंग नोट मेरा 5 हो गया। ठीक है, अब मैं लेबर की बात करूंगा। लेबर हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, इसलिए हमें ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ेगा लेबर के लिए। लेबर में अनस्किल्ड जो है वो हमारी कैजुअल है और फ्री है। अनस्किल्ड जो लेबर है वो हमारी कैजुअल है एंड फ्री है। तो जो कैजुअल एंड फ्री लेबर होती है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट। और लेबर कॉस्ट देखिए इसमें कितने घंटे लगने थे, इसमें लगने थे 4000 घंटे।
ठीक है। जो सेमी स्किल्ड है वो हमारी परमानेंट है, तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी इसकी, नील। और तीसरी जो हमारी है हाईली स्किल्ड है, वो हमारी कैजुअल भी है और बिजी भी है। तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट प्लस बेनिफिट लॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट कितनी होगी इसमें, 4000 घंटे का 5 रुपए की लेबर कॉस्ट है और 6 रुपए का हमारा बेनिफिट लॉस्ट हो रहा था। ठीक है, 56,000 रुपए हो गए मेरे। तो 56,000 में लूंगा लेबर के, ठीक है, 56,000। वर्किंग नोट अब मेरा 7 बनेगा, ओवरहेड के लिए। वेरिएबल ओवरहेड में रेलेवेंट कॉस्ट होती है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। तो 9,000 घंटे है, 1 रुपए से 9,000 रुपए। और फिक्स्ड ओवरहेड में रेलेवेंट कॉस्ट होती है नील। तो आपके जो ओवरहेड के खर्चे होंगे वो है 9,000 रुपए। इन सबको एडजस्ट करेंगे तो नेट बेनिफिट जो इसमें आ रहा है वो 33,000 का आ रहा है। तो फाइनली रिकमेंडेशन क्या हो रही है, फाइनली रिकमेंडेशन ये आई है इट इज बेटर टू opt alternative one, that is converting obsolete material into specialized प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है 41,000 रुपए का। तो जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा वही काम करने में फायदा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।